الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان میں مسلمان کو زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ پوچھا ہے اور اس کی فضیلت پوچھی ہے، اور اس کا اہتمام امت کا عمل اس پر کتنا مضبوطی سے چلا آ رہا ہے، اس بارے میں سوال کیا ہے، تو اس کا تفصیلی جواب دیتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہے، بطور تحفہ، بطور عطیہ، بطور انعام۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب یعنی اپنے چچا کو یہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح بطور تحفہ، بطور انعام، بطور عطیہ سکھائی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 رکعت نفل روزانہ پڑھ لیا کرو، روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو، ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، مہینے میں نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو پھر زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ان 4 رکعت نفل کی جو فضیلت بتلائی ہے، سن کر میں خود بھی حیران ہوتا ہوں، آپ بھی حیران ہوں گے۔ فرمایا جو یہ صلاۃ التسبیح پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے، دانستہ نادانستہ، پرانے نئے، جو یاد ہیں وہ بھی اور جو بھول گئے وہ بھی، سب اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ چھوٹے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ نوافل اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ ہیں۔ جو شخص زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے اسے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو قرب الہی ملتا ہے، دوسرا قیامت کے دن اس شخص کی نمازوں میں کوئی کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے وہ کمی پوری فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے کے، ان کو جنت بھیجنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ امت محمدیہ کی مغفرت کیسے ہو۔ اب میں اس کا طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے اہتمام کے حوالے سے اختصار سے اتنی بات عرض کروں کہ امام بہقی رحمہم اللہ تعالی اپنی کتاب شعب الایمان میں لکھتے ہیں کہ امام المحدثین، امام حدیث شیخ عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ تعالی کا اس پر عمل رہا ہے۔ وہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے استاذ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواو رحمہم اللہ تعالی اس کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو وہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے۔ اور بھی سلف صالحین کا معمول رہا ہے
सलात तस्बीह को मसाइब, मुसीबतें, परेशानियाँ, गम दूर करने के लिए पढ़ा जाए तो उम्मीद है अल्लाह ताला गम दूर फरमा देंगे, मसाइब, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। किसी मकसद के लिए पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला वो मकसद पूरा फरमा देंगे। जहाँ नवाफिल तक़र्रुब इलाही का सबब हैं, वहाँ ये 4 कलमे भी अल्लाह ताला को महबूब हैं, जो 4 कलमे सलात तस्बीह में बार बार पढ़े जाएंगे। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 4 कलमे अल्लाह ताला को बड़े महबूब हैं। किसी को इन 4 कलिमात की फजीलत और असरार और रुमूज़ का पता चल जाए तो दिन रात इन 4 कलमों को दोहराता रहे। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब इसका तरीक़ा अर्ज़ कर देता हूँ। 2 तरीक़े हैं, मगर आम आसान तरीक़ा अर्ज़ कर देता हूँ। मेरा भी इसी पर मामूल रहा है, मैं भी इस तरीक़ाकार के मुताबिक सलात तस्बीह अदा करता रहा हूँ। याद रखें, सलात तस्बीह की जमात से गुरेज करें। बहुत से लोग सलात तस्बीह तो पढ़ते हैं मगर इसकी जमात करवाते हैं। जमात ना करवाई जाए, इनफिरादी अमल है, इसलिए सलात तस्बीह इनफिरादी तौर पे पढ़ी जाए। सलात तस्बीह 4 रकात नफिल, इसमें 300 दफ़ा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा जाएगा 4 रकतों में। हर रकात में 75 दफ़ा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा जाएगा। तरीक़ा बहुत ही आसान है। जब आप तकबीर तहरीमा कह दें, सना पढ़ लें, सना के बाद 15 दफ़ा ये कलिमात पढ़ें पहली रकात में। फिर सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह फातिहा के बाद किरात करें, किरात के बाद 10 मरतबा यही कलिमात पढ़ें। यूं 25 दफ़ा हो जाएंगे। जब आप रुकू के लिए झुकेंगे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ने के बाद 10 मरतबा ये कलिमात दोहराएंगे तो यूं ये 35 दफ़ा हो जाएंगे। इसी तरह कौमे में समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, जब ये आप कह देंगे तो उसके बाद 10 मरतबा यही कलिमात दोहराएंगे। ये 45 दफ़ा हो जाएंगे। फिर आप सजदे में जाएंगे। पहले सजदे में आपने 10 मरतबा यही कलिमात पढ़ने हैं। सजदे की तस्बीह के बाद 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला पढ़ने के बाद ये कलिमात 10 मरतबा जब आप पढ़ेंगे तो 55 दफ़ा हो जाएंगे। दोनों सजदों के दरमियान जलसे में 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर जब आप 10 मरतबा पढ़ेंगे तो ये 65 दफ़ा हो जाएंगे। फिर दूसरे सजदे में सजदे की तस्बीह के बाद यही कलिमात दोहराएंगे 10 दफ़ा तो ये 75 दफ़ा हो जाएंगे। फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। इसी तरह दूसरी रकात में भी आपने ऐसे ही पढ़ना है। फातिहा से पहले 15 मरतबा पढ़ लेंगे। तीसरी रकात में भी फातिहा से पहले 15 मरतबा पढ़ लेंगे। चौथी रकात में भी फातिहा से पहले आपने 15 दफ़ा पढ़ना है। यूं हर रकात में जब आप 75 दफ़ा पढ़ेंगे तो ये कलिमात 300 दफ़ा 4 रकात में पूरे हो जाएंगे। तादाद पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। फिर दुरूद सलाम के बाद, दुरूद और सलाम के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला वो दुआ कबूल फरमाएंगे। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले जो कि अपने दौर के पाए के आलिम भी थे, मुहद्दिस भी थे, वो फरमाते हैं कि ये जो बंदा इस अमल में सुस्ती करता है वो दीन में सुस्ती करता है। कितनी बड़ी बात है। तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि नवाफिल
तक़र्रुब इलाही का सबब हैं, और ये 4 कलमे भी अल्लाह को महबूब हैं। इन 4 कलिमात की बहुत सी अहादीस में फजीलत आई है, और नवाफिल के बारे में फजीलत आई है कि अल्लाह के क़ुर्ब का सबब हैं। फिर नवाफिल के अंदर इन कलिमात को जब हम पढ़ेंगे तो सुबहान अल्लाह सवाब अजर बढ़ जाएगा। याद रखें, ये आधे घंटे का अमल है। अगले पिछले, दानिस्ता नादानिस्ता, छोटे बड़े याद हैं या नहीं हैं, अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और ये इनाम हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। ये उम्मत के ऊपर आपका एहसान है। अपने चचे के ज़रिए अल्लाह के नबी ने ये अमल हम तक पहुँचाया है, और तमाम मुहद्दिसीन, सालिहीन, औलिया अल्लाह का ये मामूल रहा है। उम्मत का मामूल इस बात की दलील है कि सलातुत तस्बीह बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। 4 कलिमात, फिर उनकी फजीलत, नवाफिल, फिर उनकी अपनी फजीलत, तक़र्रुब इलाही का ज़रिया। तो आप इस चीज़ में ना पढ़ें कि इसके पढ़ने से सवाब मिलेगा या ना मिलेगा, बल्कि आप ये देखें कि उम्मत के औलिया का मामूल रहा है, और ये भी देखें कि यह हदीस अबू दाऊद में भी है और तिरमिज़ी शरीफ में भी है। इसलिए सलातुत तस्बीह का एहतमाम किया करें, औरतें भी एहतमाम करें, मर्द भी एहतमाम करें, जवान, बूढ़े, बच्चे, बच्चियाँ इस अमल का एहतमाम करें। रमज़ान में खुसूसन एहतमाम करें, क्योंकि रमज़ान में हर अमल का अजर बढ़ जाता है। जो नवाफिल पढ़ता है अल्लाह उसको फ़र्ज़ पढ़ने का अजर अता फरमाते हैं, और जो फ़र्ज़ पढ़ता है अल्लाह उसको 70 फ़र्ज़ का अजर अता फरमाते हैं। चुनाचे रमज़ान मुसलमान मोमिनीन की बख्शिश का सामा है, बहुत बड़ा इनाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से। इसलिए रमज़ान के एक एक लम्हे को कीमती बनाया जाए, इसकी एक एक घड़ी को कीमती बनाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक की अहमियत उम्मत पर यूं वाज़े फरमा दी। जिब्रील अमीन ने कहा, या अल्लाह, जो रमज़ान का ज़माना पाए और रमज़ान में अल्लाह से माफ़ी न मांगे, रमज़ान में अपनी बख्शिश ना करवाए, उसे तबाह व बर्बाद कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कह दिया। फरिश्तों का सरदार बद्दुआ दे रहा है और नबियों का सरदार आमीन कह रहा है। तो रमज़ान के एक एक लम्हे को कीमती बनाया जाए। ये मेहमान है, इस मेहमान का खूब इस्तकबाल किया जाए। रमज़ान का महीना न जाने फिर हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे 2 महीने पहले दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान को मुबारक कर दे और रमज़ान की नेमत अता फरमा दे। अल्लाह ताला से दुआ है, रमज़ान की एक एक घड़ी, रमज़ान का एक एक लम्हा जैसे अल्लाह चाहता है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं, ऐसे ही हमें गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।